Well, today I have very special two guests joining me on this very festive occasion of Diwali. I have with me none other than Mr. Puneet Chhatwal, the MD and CEO at Indian Hotels, and a very, very special guest joining in along with him. I have with me the Minister for Tourism and Culture, Mr. Gajendra Singh Shekhawat, right here with us. Gentlemen, both of you, thank you so much for joining in. And firstly, happy Diwali to both of you. I feel like I'm the only one celebrating today, but yes. नमस्कार, बहुत सारा धन्यवाद. Thank you so much. But sir, आज जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं, that's India to be among the top global tourism economies. Where do you think India has reached in that rank? देखिए, if you consider India and compare with the global competitors, you may be little disappointed with the number of tourists coming to India. लेकिन अगर आप इसको अदर वे देखें, जिस डेटा पर हमारे टूरिज्म पोटेंशियल को एनालाइज किया जाता है, दैट डेटा इज़ नॉट कंप्लीट डेटा. वो केवल इनबाउंड टूरिस्ट है, उसी को लेकर के ग्लोबल बेंचमार्क्स पे असेसमेंट है. लेकिन इंडिया इज़ ए ब्लेस्ड कंट्री जहाँ इतना सारे हिंदुस्तानी लोग डोमेस्टिक ट्रैवलिंग करते हैं विद वेरियस पर्पजेस, और उसके चलते हुए हिंदुस्तान में टूरिज़्म का इमेंस पोटेंशियल बढ़ रहा है. फॉर्मल सेक्टर की जब भी बात करते हैं तो सब लगभग 7% का कंट्रीब्यूशन आज हमारा टूरिज़्म में का इकोनॉमी में है. और जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़न है, जिस तरह से हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, बाय 2047 हम अपनी इस कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज़्म इनटू इकोनॉमी इसको डबल डिजिट से क्रॉस कराना चाहते हैं, वहाँ तक ले जाना चाहते हैं. तो ऐसे में मैं एक बहुत अच्छा फ्यूचर टूरिज़्म को लेकर के देखता हूँ, और विशेष रूप से इसलिए क्योंकि भारत में जिस तरह से मिडिल इनकम ग्रुप बढ़ रहा है, गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए उसके चलते हुए, दैट इज़ गोइंग टू कंट्रीब्यूट अ लॉट, बिकॉज दैट इज़ एन एस्पायरिंग क्लास जो बरसों से इंतज़ार कर रही थी. अब पहली बार डिस्पेंसेबल इनकम उनके पास में आई है. दे हैव स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ होम्स. तो मैं मानता हूँ दैट आने वाले समय में भारत का टूरिज़्म सेक्टर इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने में और इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाने, इन दोनों में बहुत बड़ा ड्राइवर और कंट्रीब्यूटर होगा. And Puneet, who better than you to actually capture the diversity that the country brings in? Where do you see India going ahead, like Mr. Minister gave his vision for 2047? I mean, we can not just be a GDP contributor via our tourism, but we can do so much more. And you're at the helm to profit from it all. First of all, thank you for having us. Second, I feel the tourism sector is blessed after a very long time to have somebody heading it who himself comes from that background. So whatever our needs and wants are, which might have seemed luxury in the past, is very well understood that it's not luxury. It's just the fundamental need of the population. Second, we all know that we want to be a 3 trillion tourism economy, that we want to be a big contributor, double digit, as the Honorable Minister said. I think very important aspect of inbound tourism could be that it helps in the positioning of the nation on the global map. What is the character of the nation? So we all know that we have a wonderful history, we have wonderful ethos, we have wonderful, culture. You said diversity. In school, we all learnt unity in diversity. So I think it's a huge opportunity, especially with the growing India. And now when we see all the delegations coming into India, they are not just coming because we are number 5 economy, but the culture of India is spreading far rapidly than anybody thought. Today, Indian professionals becoming global CEOs of global firms are also leaving their mark. And I'm really looking forward, and we have already started working together with the Tourism Ministry. And I can say on behalf of the sector, on behalf of the Tourism Committee that I had for CII, or the Faith as an institution, as the apex body, that the mood is very upbeat.
which is also a bit challenging, which I'll tell the Honorable Minister, because the expectations with It's the mood really high, is yeah. also very high. Absolutely. कि हमारे देश में जो डाइवर्सिटी है, इस डाइवर्सिटी को यूनिटी में कन्वर्ट करने के लिए देयर आर मैनी थिंग्स विच वी कैन इलस्ट्रेट, एंड नाउअडेज टूरिज्म हैज़ बिकम अनदर यूनाइटिंग फैक्टर राइट फ्रॉम केरला टू केदारनाथ. इसको यूनाइट करने वाला अगर कोई जो फैक्टर है वो हमारा स्पिरिचुअल टूरिज़्म हुआ करता था. अब वो टूरिज़्म जो है स्पिरिचुअलिटी से बाहर निकल करके पहले मोन्यूमेंटल की तरफ और अब एक्सपीरियंशियल टूरिज़्म की तरफ जा रहा है. दूसरा जो पुनीत जी ने बात की, मैं पूरी तरह से उससे सहमत हूँ. हमारा जो इंडियन डायस्पोरा दुनिया भर में रह रहा है, द वे दे हैव बिकम इन्फ्लुएंशियल wherever they are living, putting up. Honorable Prime Minister have hailed them and उनको कहा है कि यू आर द कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया. और एक स्कीम उन्होंने अभी शुरू किया है, जो हमारा इंडियन डायस्पोरा या OCIs जो भारत से बाहर रह रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने 5 ऐसे नॉन इंडियंस जो कलीग्स हैं उनको मोटिवेट करिए कि वो हिंदुस्तान जाएं. और उसके लिए हमने एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया है. इस व्यवस्था से whosoever will come to India will apply for Indian visa. वैसे भी आपकी जानकारी में होगा that गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव टेकन इनिशिएटिव इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज बैरिंग 2-3 जो जिनके यहाँ स्पेशल मेजर्स जिनको लेकर के हैं, उनके लिए ऑलरेडी ई वीज़ा प्रोविज़न हैज़ बीन मेड आउट. बट फॉर द टूरिस्ट हु आर कमिंग विद द रेफरेंस ऑफ एनी इंडियन सिटीजन और OCI, उसको 1 लाख लोगों को, पहले 1 लाख को वीज़ा फ़ीस भी एग्जाम्प्ट कर दिया, वीज़ा ग्राटिस कर दिया उनके लिए. और उनको स्पेशल पैकेजेस और अटेंशंस मिले, उसको लेकर के हम इंडस्ट्री से भी बात कर रहे हैं. ऑर्गेनिकली भी हिंदुस्तान की तरफ देखने का नज़रिया पूरी दुनिया का बदला है. जिस तरह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, जिस तरह से जो है हमने डिफरेंट सेक्टर्स में अपनी प्रोग्रेस को एस्टेब्लिश किया है. टू नो इंडिया, टू अंडरस्टैंड इंडिया, टू नो अबाउट इंडिया, पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है. अभी हमने गूगल के साथ में एक अंडरस्टैंडिंग करके कुछ एनालिटिक्स पर काम किया कि भारत को देखने के लिए लोग कितने लोग बढ़ रहे हैं स्पेशली पोस्ट कोविड. क्योंकि पोस्ट कोविड मैं ये मानता हूँ पूरी दुनिया का ज़िंदगी को तरफ देखने का और सोचने का नज़रिया बदला है. सो क्या देखना चाहते हैं. बट आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड टू सी कि कोविड के बाद के 3 साल से लगातार भारत को खोजने वाले लोगों की इंटरनेट की दुनिया में ऑन डिफरेंट सर्च इंजन्स फॉर डिफरेंट पर्पजेस, वो नंबर जो है वो 28% की दर से बढ़ रहा है. इट इज़ अमेजिंग. दो इट मे नॉट बी रियलाइजिंग in the tourism, but still people are started looking towards, and the curiosity has come. That is because of the various reason. जो स्टेबिलिटी आई है, फाइनेंशियल ग्रोथ हुई है, जिस तरह से हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हुआ है, जिस तरह से डिफरेंट टूरिज़्म प्रोडक्ट्स को देखने के लिए, जानने के लिए, उनका अनुभव करने के लिए लोगों ने जो है अपनी उत्कंठा शुरू की है. मुझे लगता है कि इसको लेकर के बहुत तेज़ गति से हमारे यहाँ टूरिज़्म बढ़ेगा. एक तरफ हमारे नए टूरिज्म प्रोडक्ट्स बने. सो फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रमोशन ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ 5P हमने इस पे काम करना शुरू किया है. हम किस तरह से अपने जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको ज़्यादा सस्टेनेबल बनाएं, हम अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को ज़्यादा एक्सपीरियंशियल बनाएं, हम अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे आकर के लोग जो हैं, जो भी आता है उसका एंड टू एंड सोल्यूशन उसको किस तरह से दें. इन सब चीज़ों पर एक साथ काम कर रहे हैं. भारत सरकार ने अभी जो स्वदेश दर्शन और प्रसाद की 2 योजनाएं जो टूरिज़्म डेस्टिनेशंस पर ओवरऑल एक्सपीरियंस को अपलिफ्ट करने पे काम कर रही थी, उनके साथ साथ में हमने अभी प्रधानमंत्री जी की जो बजट घोषणा थी टू एक्सटेंड इंटरेस्ट फ्री कैपिटल इन्वेस्टमेंट लोन टू द स्टेट्स, उसका एक किटी हमने एक टूरिज़्म के लिए लेकर के स्टेट्स के साथ में बातचीत किया. आई एम सो हैप्पी दैट स्टेट्स ने 1 महीने के विंडो में 8,000 करोड़ रुपए वर्थ के ऐसे प्रोजेक्ट्स जो एग्जिस्टिंग डेस्टिनेशंस को डीकंजेस्ट करेंगे या वहाँ नए एक्सपीरियंशियल प्रोडक्ट्स को जो है डेवलप करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, ऐसे जो है
प्रोजेक्ट सबमिट किए हैं जिस पर हम आने वाले 1 महीने में निर्णय लेकर के उस पर काम शुरू करेंगे। सो थ्रू वेरियस थिंग्स हमने जो है अपने यहाँ ओवरऑल टूरिज़्म का टूरिस्ट का एक्सपीरियंस भी बढ़े और नंबर ऑफ़ टूरिस्ट जो बढ़ने वाले हैं उनको हम एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के साथ ला सकें, उस पर काम कर रहे हैं। बट शेखावत जी, जैसे आपने कहा कि 28% अपटिक है ऑन एवरी ईयर एनुअली इन फैक्ट ऑन द गूगल सर्चेस फॉर इंडिया टूरिज्म. But how can India tourism be spread to, say, lesser known places? Because we all know, being here in India, that you just have to drive outside a city and there are lovely destinations across the country. What can be done to move the tourists outside the Rajasthan and Kerala, which is always the first port of call? इनबाउंड टूरिस्ट के अगर डेटा को आप अब तक के पिछले 10 साल के एनालाइज करें, 85% ऑफ टूरिस्ट वो दिल्ली, आगरा और जयपुर या राजस्थान इसके बीच में मूव करता है। लेकिन जो डोमेस्टिक ट्रैवलर है वो ज़्यादा वाइडली ट्रैवल कर रहा है। इन दोनों के बीच में संतुलन बनाने के लिए, नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए, जैसा मैंने कहा कि हमने जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है उसमें डीकंजेशन को सबसे पहली प्रायोरिटी दी है और उसके जो प्रोजेक्ट अप्रूवल का जो फार्मूला है बनाया था उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो डीकंजेशन को दिया है, नए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को बनाने पर दिया है, उनकी मार्केटिंग। और ऐसा टूरिज़्म, क्योंकि भारत के दृष्टिकोण से जैसा मैंने कहा कि हम ग्लोबली जिस तरह से टूरिज़्म को देखते हैं कि कुछ एक आइकॉनिक प्रोडक्ट्स हैं बस उन्हीं के ऊपर टूरिज़्म चलता है, उसके आगे बढ़ कर के हिंदुस्तान के डोमेस्टिक टूरिज़्म को देखते हुए हमने लोकल टूरिज़्म असेट्स की रिपोजिटरी बनाने पे काम शुरू किया है और 17 ऐसे पैरामीटर्स जिनके लिए आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर विच द टूरिस्ट नॉर्मली गोज आउट ऑफ होम, लाइक राइट फ्रॉम द स्पिरिचुअल टूरिज़्म टू द रिक्रिएशनल टूरिज़्म जो है, वीकेंड टूरिज़्म रादर आई शुड से, उसके लिए जो घर से निकल कर के लोग जाता है उसके लिए अवेलेबल और प्रोबेबल डेस्टिनेशंस को लिस्ट आउट करके देश भर के ऐसे टूरिज़्म पोटेंशियल की एक रिपोजिटरी बने ताकि स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स और यूनियन गवर्नमेंट दोनों मिलकर के उनको धीरे धीरे डेवलप कर सकें। सो इस पर हम बहुत फोकस तरीके से काम भी कर रहे हैं और साथ साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी स्कीम्स में हम प्रायोरिटी के साथ में उस पर काम कर रहे हैं कि हम नए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को प्रमोट कर सकें। एक बार आप जो है किसी डेस्टिनेशन को या किसी टूरिज़्म प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, इस जो है डिजिटल वर्ल्ड में अभी उसको दुनिया तक पहुंचाना कोई बड़ी चुनौती नहीं है। एंड टूरिज़्म ऐसा सब्जेक्ट है कि एक बार जो है उस पे जो कोई जा कर के आता है, वो जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी है आजकल, जो इंस्टाग्राम टू इंस्टाग्राम जो पब्लिसिटी है वो अपने आप में उसको मार्केट करती है। Absolutely. Puneet, when we talk about diversity of India, what better a diverse portfolio than yours, which has everything from Taj to Ginger. How do you capitalize on all that India has to offer at Indian Hotels? See, we are very blessed because our founder started with the Taj. And to go back to your comment on Rajasthan and Kerala's, I think firstly we will be celebrating 50 years of Goa this year, and we were the first brand to move into Goa with Taj Fort Aguada. So in December we'll be having a big celebration. The same thing happened in Kerala, and putting the palaces on the world map in Rajasthan, starting with Rajasthan and now until whether it's Gwalior or it's Falaknuma in Hyderabad, we have come a very long way. So our USP we should not forget. So it's not either or, it's Rajasthan, Goa, Kerala, the big metros and the new destinations that are coming up. From our point of view, our contribution as a company that belongs to Tata Group, वो जो हमारा जो योगदान है कई सालों से रहा है और आने वाले समय में भी रहेगा। दैट्स वाई हमने अभी रिसेंटली 2 आइलैंड्स अनाउंस किए थे, सुहेली एंड कड़मट लक्षद्वीप में, जहाँ पे हम पूरे 2 आइलैंड्स की डेवलपमेंट कर रहे हैं। इट्स नॉट ईजी बिकॉज कनेक्टिविटी नहीं है, हाउ टू गेट द मटेरियल्स टू बिल्ड वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, बट वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास ग्रुप में इतनी स्ट्रेंथ है कि वी कैन ड्रॉ ऑन रिसोर्सेज टू बिल्ड दैट। समथिंग विच इज़ बीन वेरी सरप्राइजिंग, जो हमारे साथ बहुत
सक्सेसफुल रही है इज़ आवर होम स्टे बिजनेस। तो ये जो आमा होम स्टेज जो हमने किया, पहले हमने सोचा था हम इंटरनल एग्रीगेटर बनेंगे, तो आपके जो टाटा कंज्यूमर और टाटा कॉफ़ी के जो बंगलोज हैं दे वर स्ट्रगलिंग कि इसका क्या करें, तो हमने सोचा इनकी हेल्प कर देते हैं, इनको कन्वर्ट कर देते हैं। एंड देन कोविड केम, तो ड्यूरिंग कोविड दैट डिमांड एक्सेलरेटेड इस सेगमेंट में। तो if we count homestays and hotels together, we today cover more than 150 destinations across a portfolio जो आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ is 350 plus hotels, जिसमें से almost 240 hotels we have in operation and another 110 to 120 homestays. So portfolio में तो growth है, पिछले 5 साल में ये डबल भी हो गया, आने वाले 5 साल में अगर ऐसे चलता रहा तो इसका भी डबल हो जाएगा। सो आई थिंक दैट वे वी आर वेरी ब्लेस्ड। इंडिया इज अ हैपनिंग प्लेस। जो कुछ हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ, न्यू डेस्टिनेशंस, वो क्या कहते हैं, टियर 2 टियर 3 सिटीज, बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो ऑनरेबल मिनिस्टर को आई मस्ट गिव क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी is the indirect biggest beneficiary of the government's focus on infrastructure. So the renaissance of the train stations, the doubling of the airports, जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी 10 एयरपोर्ट थे, आज 150 हैं, आने वाले समय में 300 होने वाले। So 6 lane highways, getting to Jaipur from Delhi is maybe faster by road now than it ever used to be, and then taking a flight, yeah. Right, with all the security and the time you have to come before. तो ये तो अभी हुआ है पिछले 4-5 साल में, and it's not stopping here, it's only increasing its pace. On Sunday I am going to Lonavala after landing in Mumbai to go to one of our homestays and see how it looks like. तो पहले सोचते थे जाएं या नहीं जाएं, but वो with new bridges तो अतल सेतु वगैरह बन गए हैं, उससे you reach there in 2 hours and you can be back the same day also. So a lot is changing, a lot is happening, and because of all this, जो हमें सबसे अच्छी लगती है बात, इस सेक्टर को बहुत सिक्लिकल माना जाता था, तो थैंक्स टू डोमेस्टिक टूरिज्म coupled with जो इंटरनेशनल था और वो भी बढ़ता रहेगा, with that plus the importance of spiritual destinations, we are in 50 plus destinations, plus the infrastructure improvement. In hindsight I would even say thanks to COVID, जो लोग गाड़ी खुद चला के जाते नहीं थे, we used to wait for driver, now people just take off on their own because the quality of the roads is so good. So much better, yeah. So I think all in all we are for the first time in a sector which is only going to keep going up over the next decades. Of course there will be some headwinds, कभी ना कभी छोटा मोटा वो आएंगे dips, but demand is higher than supply and the supply cannot catch up that fast as the demand is growing. So we feel we are in the, for the first time I would say after 4 decades, in the right sector at the right time, and I hope this journey continues in the right like country. this and in the right country. Right. जैसे पुनीत ने बोला कि जयपुर के लिए अब by road ज़्यादा easy है as opposed to taking a flight. So उस पे गवर्नमेंट क्या काम कर रही है? देखिए, मोदी गवर्नमेंट की USP है होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ काम करना। किसी भी एक सेक्टर का मल्टीप्लायर इम्पैक्ट दूसरे सेक्टर्स पर भी होता है, ये जानते हुए गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्री जो हैं साइलोज में काम करें, ये सिस्टम अब देश में ख़त्म हो गया है। पहले होता था, अगर मैं आज से 15-20 साल पहले की बात करूं, एक ही मंत्रालय के 2 डिपार्टमेंट्स के बीच में जो है आपस में बातचीत का संबंध नहीं था, लेकिन वो व्यवस्था अब समाप्त हुई है और एक हॉलिस्टिकली कैसे सब लोग मिलकर के एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। जब मैंने नए डेस्टिनेशंस को बनाने की बात की, जो नए डेस्टिनेशन स्टेट्स ने प्रपोज़ किए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोड वर्क्स डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज किस तरह से वहाँ सड़क को पहुँचा सकता है। जब हमने अरुणाचल में परशुराम कुंड को डेवलप करने के लिए काम करना शुरू किया, स्वदेश में प्रमोट किया, तो साइमल्टेनियसली रेल वहाँ कैसे पहुँचे, इस पर भी काम शुरू किया। तो जब गवर्नमेंट इस तरह से होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ काम करती है तो बेटर रिजल्ट्स आते हैं, मल्टीप्लाइड रिजल्ट्स आते हैं, और उस पर हम काम कर रहे हैं। जहाँ पुनीत जी ने जो बात की थी होम स्टेज़ की, मैं आपको सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने सब स्टेट्स को, आज सुबह मेरी हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई, और लगभग मध्य प्रदेश, सारे स्टेट्स जहाँ टूरिज़्म पोटेंशियल है उन सबको हमने कहा है कि जो फॉरेस्ट की लॉजेस पुरानी बनी हुई है फॉरेस्ट एरिया में, जहाँ हम नया कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं कर सकते,
जो इरिगेशन के जो हमारी वाटर रिसोर्सेज के पास में जो बड़े बड़े पुराने ब्रिटिशर्स से रह के जो गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं, उन सबको भी हम टूरिज़्म में ला करके इंडस्ट्री के साथ में जोड़ करके हम इंडस्ट्री को ऑफ़र करें, वो उसको डेवलप करें और एज होम स्टेज उनको चलाएं और उनको नए प्रोडक्ट्स के रूप में हम इमीडिएटली ऑफ़र कर सकते हैं आने वाले 1-2 साल में। उस पर भी हम लोग विचार करके काम कर रहे हैं। Yeah, absolutely. Puneet, you would like to add something here? Yeah, I think जो बोला है ऑनरेबल मिनिस्टर ने वो बिल्कुल ठीक बोला है कि जो साइलो थिंकिंग है, it's also with the evolution of the country. 75 years post independence is not the same as 10 or 15 or 25 years post independence, but the government has worked well. I will only confirm 2 things that he said. इन्होंने अरुणाचल का एग्जाम्पल लिया और हमने वहाँ पे तवांग में होटल खोला, तो which the honorable prime minister used to say, it's not your last village, it is your first village coming in from outside. So we are present in a place like Tawang. And also I can confirm that when the prime minister was lobbying for each OCI or Indian diaspora to send 5 people, I was in that audience of 1,000 people in the city of Berlin. And the way he communicated that was exemplary. I think I have never seen or witnessed anything like this before. So I think there is a lot of talk, there is a lot of mention about tourism. So maybe we have not got many things which are tangible, but I personally believe that we are getting, the sector is getting the recognition, because the biggest multiplicator of jobs is Yeah, this sector, absolutely. both in organized and unorganized sector. If India has the demographic dividend of having 67% of the population between 15 and 60 years old, then that means we need more Jobs. and more jobs. And tourism and hospitality ensures that a shikarawala, that a rickshawala in Kashi Vishwanath, or the vegetable supplier or the milk supplier, they are all occupied, and it has a big multiplier effect which helps not just the jobs, with the jobs, the taxes, with the taxes, the contribution to the economy, but sometimes that data is misleading क्योंकि हमारे पास अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा अभी नहीं होगा, आस्ते आस्ते इट विल कीप इम्प्रूविंग, पर अभी नहीं है। शेखावत जी, लास्टली वेयर डू यू थिंक चैलेंजेस आएंगे? हर अच्छा काम करने में कुछ तो कठिनाइयाँ आती हैं. Where do you think are the challenges? Because, again, like we said, every state has so much to offer. Every lane has so much to offer in cities. And, how do you bring that entire diversity into the India selling pitch for the outside tourist? See, जो मुझे आज की तारीख में टूरिज़्म में सबसे बड़ी चुनौती दिखती है, that is all because of the growing tourism potential and expected increase in the number of tourists. Because all our destinations are congested, and the way our domestic people have started traveling out and going out of home, all our tourist assets, the hospitality assets rather I should say, the hotels and all, unka price because of the number of tourists are increasing and demand is increasing, so it is growing. It's maybe good news for Puneet ji, but it is a adverse factor also. Yeah. हमको अपने टूरिज़्म प्रोडक्ट्स की, हॉस्पिटैलिटी प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को एक लेवल पर ला करके रखना पड़ेगा. आज भी अगर हम देखें, इंडिया का जो एलीट टूरिस्ट सेगमेंट है, आउट ऑफ द टोटल सेगमेंट ऑलमोस्ट 18-20% जो है, वो अगर जोधपुर मेरा शहर से निकल करके इफ़ ही विश टू गो टू फोर्ट गोवा एंड स्टे इन फोर्ट अग्वाड़ा फॉर 3 nights और इन केरला और एनी अदर डेस्टिनेशन, उसके लिए उसके बजाय बाकू में जाकर के, दुबई में जाकर के 4 दिन रहना ही चीपर, ट्रैवलिंग एंड स्टे बोथ. एंड ऑन द अदर एंड जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है उसका अपर सेगमेंट छोड़ दीजिए, ही कैन अफोर्ड ऑल द प्लेसेस, बट जो मिड साइज सेगमेंट है उसका भी नीचे बैकपैकर्स को छोड़ दीजिए, दे कैन सर्वाइव, बट जो बीच का सेगमेंट है विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर, वो he looks for a destination where he can survive for $100 or $120, $130. So and they are traveling in the groups. Yeah. So वो $100, $110, $120 पे आज हमारे यहाँ सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो रहा है.
because though it's fact that the quality of services what Indian hotels and Indian star hotels are giving वो दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी हमको अल्टीमेटली अफोर्डेबिलिटी पर अब काम करना पड़ेगा। और मैं तो इंडस्ट्री को सभी लोगों को बार बार ये बात कहता हूँ कि हम जो है पैलेसियल होटल्स के साथ साथ में बजट होटल सेगमेंट पर भी सब लोग तेज़ गति से काम करें, तब जा कर के हम ग्रोइंग पोटेंशियल को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बना पाएंगे। दूसरा, जिस तरह से हमारा टूरिज्म पोटेंशियल बढ़ रहा है, हमको सस्टेनेबिलिटी पे बहुत तेज़ी से काम करने की आवश्यकता है, विच वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। हमने अभी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वी हैव इनिशिएटेड ए प्रोग्राम विद पर्यटन मित्र एंड दीदी, वेयर वी आर एडुकेटिंग लोकल डायस्पोरा यूथ्स को उसके लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि वो पूरे टूरिज्म सेक्टर के हर स्टेक होल्डर को उनको वो ओरिएंटेशन कर सकें कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्या होंगी, राइट फ्रॉम द टैक्सी ड्राइवर टू द होटल तक सब लोगों के साथ में मिलकर के वो काम करें, वो एक फैसिलिटेटर के तरह काम करें, वो जो है अप्रोच बिल्डिंग के लिए और आपकी जो है बिहेवियर चेंज करने के लिए काम करें। इस पर हम लोग उनको ट्रेन करके ऐसी एक वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं। थर्ड थिंग विच आई एम लुकिंग, जो हमारे लिए चैलेंज होगा, जिस तरह से सेक्टर ग्रो कर रहा है उसके लिए हमें स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत होगी। एक तरफ हमारे पास में जो है रोजगार के आवश्यकता है, रोजगार के साधनों की, और दूसरी तरफ हमारे पास में सही लोग नहीं है। सो जो देश की सरकार के और राज्यों की सरकार के साथ मिलकर के जो हम IHMs चलाते थे, उन IHMs को हमने इंडस्ट्री के साथ में कनेक्ट किया है टू मिटिगेट दिस इम्पैक्ट जो आने वाला है, जो रिक्वायरमेंट आने वाली है उसको लेते हुए। एंड आई एम सो थैंकफुल, पूरी इंडस्ट्री ने उसको बहुत सपोर्ट किया। मैंने अब तक 29 इंस्टीट्यूट्स जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के, जिससे पुनीत जी भी जिससे पढ़ के आए हैं, उन सारे इंस्टीट्यूट्स को इंडस्ट्री को साथ में जोड़ करके उनको जो है वो उनके साथ में MOU साइन किए ताकि वो लोगों को ट्रेन करें, अपनी नीड के हिसाब से ट्रेन करें और फाइनली ट्रेन मास को अपने यहाँ पे एब्जॉर्ब भी करें। तो वो हमारी इस नीड के गैप को भी कम करेगा और साथ साथ में जो राइट पीपल हमको चाहिएंगे आने वाले समय में, द वे होटल्स आर ग्रोइंग, द वे द अदर अकोमोडेशंस आर गोइंग, हमको जो है उसके लिए जो ज़रूरत पड़ेगी उसकी तैयारी कर रहे हैं। So Shekhawat ji, how do you get the right balance कि जैसा कि आपने कहा, जो मिड इनकम लेवल के लोग हैं जिनको $100 to $120 पर नाइट रूम रेट की आवश्यकता है, how is it that you marry all the needs of both domestic as well as international tourists? Because they want something new, they want the experience, plus they want affordability. Is there any which way that you can not just marry their needs, but also, sort of cater to the industry, make sure that the industry also remains buoyant? It's a bit of a tough, tightrope walk, if you can I don't call think, it that. I think Puneet is also going to agree with my concept that it's an opportunity. It's an opportunity. हम जितना डाइवर्सिफाई करेंगे उतना ही हमारा पोटेंशियल जो है ज़्यादा ठीक तरीके से हार्वेस्ट होगा। So it's not a problem. It's an opportunity for us. I agree. इसमें जो आपने जो 3-4 पॉइंट्स बोले, नंबर 1, we are only looking at pricing of luxury. 93% of the supply in India is non-luxury. तो उसकी प्राइसिंग इतनी हाई नहीं है. But we are coming, as I said, from a very different era in the past. आपकी same airline, longer distance, flying out of Europe to India is more expensive than if it goes to Thailand, because the airport taxes are different. Your GST on hotels is different. Then also the way you incentivize a sector. So as a sector, we had always requested infrastructure status at the center level. If we don't want to give it for the entire sector, we can incentivize, as the Honorable Minister said, the mid-market and the budget sector, that if they get infrastructure status, I think it should be given for all. It's still not easy to build luxury hotels. It's easy to talk about it, but very difficult to build them. So if we give that infrastructure status and industry status in every state, from his own state, Rajasthan has the best execution on industry status. But I would encourage all states to do so, because Rajasthan is also dependent on a lot of tourism activity. Yeah. So I think that's an opportunity. Diversification is an opportunity, as the Honorable Minister rightly said, and very
very importantly, we have not yet, we speak about spiritual, we speak about monumental. अभी तो इंडिया में is going to be a big influx of medical tourism. जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला था, not only make in India, now heal in India, because you could actually fund your trip, your hotel stay, a couple of weeks of that, and still get your dental treatment done or any other treatment at done a much cheaper cost with the best of doctors. At the Yes. best of doctors, Yeah. right? So the opportunity is huge, and we are just at the beginning of this cycle, and a lot needs to be done, and a lot is being done, and we remain very optimistic that with the current team that is heading, we have the right ears and also the right support. That's the very fact. I don't remember when I last sat down with a minister at a center level. I don't think I ever sat down in my last And 7 we are sitting years. in last 15 days, we were together 4 Three times. or 4 times we were together on the same platform, advocating and propagating the same thing. And you know what happens if you keep doing it regularly? What आपकी happens? सोच भी सेम हो जाती है एंड अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है और ट्रस्ट फैक्टर भी बढ़ जाता है एंड यू मार्च टुगेदर Yeah. सो फॉर एग्जांपल skilling, we have committed to skill 100,000 people by 2030. We are already achieved like more than 20% of that. We have opened 35 skilling centers from, you know, the last one or the last to last one that we opened was in Kevadia or in Ekta Nagar. So, you know, things are getting done. The sector is participating. People will be skilled. Yes, it's a challenge because a lot of people, because of COVID, they left the sector. तो ये एक इंडिया प्रॉब्लम नहीं है, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम हो गई, पीपल लेफ्ट द सेक्टर, दे माइग्रेटेड टू अ डिफरेंट सेक्टर. सो द कॉस्ट ऑफ दोस hiring has also gone up significantly. But this is the most resilient sector. Imagine everybody had declared this sector dead during COVID. With what kind of vengeance it came back. So, तो कहते हो ये प्लास्टिक बॉल की तरह है, इसको दबा के जब तक पानी के नीचे रखते हो ठीक है, जैसे ही आपने हाथ हटाया it will come back up. तो we are very, very optimistic that things will keep improving, and price and value, a customer knows how to judge it. Baku is a great destination. I have been there, but you know, I think Can't compete with India. Udaipur or our Kochi or our Jodhpur, Hands you know, down. it's very different and very special, because when you come to India, you don't do just Baku. Not one destination, Yeah. right? So you'll have multiple destinations, and you can't come to India only once. You have to come several times To experience, to all of experience, India. you know, more than 1 million square kilometers of mountain range, more than 7,500 kilometers of coastline, more than 500 beaches. So I think there is a lot that we can look forward to. Absolutely. And Shekhawat ji, I think, you know, like Puneet also said and you also earlier mentioned, कि after COVID एक thinking ही बदल गई है. You know, you are now thinking of more sustainable tourism. One is now thinking of more experiential tourism and of course medical tourism, and now more and more spiritual tourism as well. It's no more monumental. Yeah, so spiritual tourism, the way it has grown, Absolutely. Ayodhya and Kashi and Ujjain, the way it is growing and the potential what I see, पूरे थाईलैंड में जब हम देखते थे कि 4 करोड़ टूरिस्ट जाता है, अगर एक केवल मैं अयोध्या, केवल काशी, केवल उज्जैन देखूं, उसका नंबर 4 करोड़ है. सो ये एवर इंक्रीजिंग है, ये बिल्कुल भी कम नहीं होगा. तो और ऐसे कितनी सारी नई जगह डेवलप होने वाली है. इस बजट में हमने विष्णुपद टेम्पल के लिए काम करने का घोषणा की है, महाबोधि टेम्पल के लिए काम करने की शुरुआत की है. ये दोनों कॉरिडोर्स बनते हैं, ये बिहार में एक नया रिवोल्यूशन टूरिज़्म में मैं देख सकता हूँ कि आने वाला है. सो इन सब प्रोडक्ट्स को लेकर के जिस तरह से सरकार काम कर रही है और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जिस तरह से फोकस है इस सेक्टर को लेकर के, खुद प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर के कहें वेड इन इंडिया, खुद प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर के कहें कि मीट इन इंडिया. सो इसका इम्पैक्ट, जो ग्लोबल इम्पैक्ट होता है, वो बहुत ओवरवेलमिंग. G20. Yeah, G20 में the show we put up, and cost was not an issue because the hotel sectors thought कि इससे अच्छी marketing हमें worldwide कहाँ मिलेगी, because all these pictures will go in the top
nations of the world. तो And all the weddings which are now happening in India. और अभी अभी पुनीत जी अभी चल रहा है G20 इज ब्राज़ील इज़ हेडिंग और अभी टूरिज़्म की मैं G20 मीटिंग से आया हूँ. The moment I landed and the minister met me and first sentence after greeting उनका ये था कि don't compare your G20 meeting with compare us with your G20 meetings. We are not going to do like that and we will not be able to do like that. So this is how the impact. and मैं आपको उससे आगे बढ़ करके बताऊँ. G20 ने जो कॉन्फिडेंस इंडस्ट्री में बिल्टअप किया, जब सरकार बनी तीसरी बार मुझे ये मंत्रालय मिला, उसके तीसरे दिन मतलब मैं फर्स्ट टाइम प्रोबेबली आई वाज इन द ऑफिस सिटिंग देयर आफ्टर हैविंग दैट अज्यूमिंग दैट चेयर. मैं जब जा कर के बैठा कुर्सी में, मुझे बताया गया दैट वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जो इट वाज सपोज टू हैपन समवेयर एल्स, वहाँ किसी कारण से चेंज हो गया एंड इंडिया को वो होस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है विच वी नेवर हैड फॉर लास्ट 75 ईयर्स. कभी हमको नहीं मिला था. आई वेंट टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड रिक्वेस्टेड सर इट इज़ अ बिग प्लेटफॉर्म और अगर होती है तो हमको टूरिज़्म से सब तरह से इसका लाभ होगा. He said, how many people do you expect there? I said, out of 165-70 countries, there may be somewhere around 3,000 delegates. And this meeting will go on for 10 days. So he said, तुम कैसे कर पाओगे, तुम्हारे पास में 40 दिन है. I said, साहब आपने जो है भारत मंडपम बना दिया है, होटल्स हम मैनेज करेंगे, सबको accommodate करेंगे and we'll be doing it. He blessed us. But the confidence which has come out of organizing G20 के various meetings, हमने successfully किया और वो अपने आप में एक landmark meeting हो गया. एंड भारत मंडपम के अलावा यशोभूमि कल बहुत बड़ा इवेंट है यशोभूमि में, तो होस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट्स अ वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर फैसिलिटी. तो ये सब चीज़ें पहले थी नहीं. अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज़ आई हैं, उससे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है कि वी कैन होस्ट वर्ल्ड वाइड इवेंट्स वेदर दे आर गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल इवेंट्स. तो अब आपके 2-3 हज़ार डेलीगेट्स आ गए तो दिल्ली के तो सारे होटल्स फुल हो जाएंगे, और अगर 10 दिन के लिए हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है. हम तो वी आर हैप्पी टू, Of course you are. not only happy, we are very happy then. So, and of course it is good because then we reinvest the same money into the same country, into the sector. Yeah, absolutely. So Shekhawat ji, before we wrap up, outside of Rajasthan, because I'm sure that's where the heart belongs, which is your favorite Indian travel destination? मैंने बहुत सालों तक एज अ टूरिस्ट पूरी देश को घूमा है और खुद ड्राइव करके विद माय फैमिली, माय वाइफ एंड किड्स ऑलमोस्ट 3 बार पूरे हिंदुस्तान को ड्राइव किया है. मेरी पसंदीदा जगह अगर कोई हिंदुस्तान में है जहाँ मुझे घर से निकल करके जाने में सुकून मिलता है, वो हिमाचल है. और मैंने जोधपुर से फ्रॉम माय प्लेस टू लेह पेंगोंग सो तक 5 बार ड्राइव किया है. वाह. तो इसलिए जो है मुझे घर से नींद में से उठ के भी अगर कोई कहता है, एंड द थिंग विच माय किड्स मिस आउट द मोस्ट Is now the travel. दैट इज़ ट्रैवलिंग. कि हम गाड़ी में बैठे और रवाना हुए और चले गए. So Puneet, how many more hotels in Himachal? Himachal, every state is booming. We are doing almost 40 to 50 new contracts per annum in India. And अगर हम हर महीने 2 to 3 hotels खोलते रहे तो every year is 30. So each state will get its fair share. And very important, हमारा focus एक north east पे भी है, because in part of contribution to nation building. And it's unexplored. And it's just unexplored, So I and think. it's so beautiful. So beautiful. So pretty. We are at the moment at a portfolio of 15. I think very soon it will be 25. We have a beautiful Taj in Gangtok, in Kurseong, and as I said, Tawang, Shillong, Guwahati. Recently we entered into not only electronics factory in Jagi Road, but on the other side of the factory we are building a hotel in Jagi Road in Assam. So there is a lot of stuff that is happening, and it's very exciting because, as you know, sustainable is one thing, but it's a holistic approach of creating a destination, creating employment, and making an impact on the society. So I'm very, very pleased and with the way we have progressed, and we continue to progress. ये चलता रहेगा आगे भी.
So Shekhawat ji, next road trip to Assam. देखिए, Whenever you it get is. time off from handling that is the the biggest ministry. challenge. Okay, but thank you both of you. Thank you so much for taking the time out and speaking us today at on Rendezvous at Taj. Thank you so much. Thank you very much. आपके दर्शकों को सबको दिवाली की शुभकामनाएं. Thank you so much. Thank you for having us.